Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our online classes of biology from High Star and North City Public Secondary School and College. Viewers, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दी NCPSS and the HSPSS पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। We will continue our lectures. We will start from chapter number 4 and this is our lecture number 1. Chapter number 4 is cell and tissue. You could find cells just as intricately patterned and beautifully formed in any plant you look at, from the rose in your backyard to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you ate for a snack. That's not limited to it. Plants, either layers of the cells can be found in your skin, in insect wings, or in just about any other living tissue you choose to look at. We and the world around us are made up of cells. We just need some microscopy to appreciate it. विवर्स, इस चैप्टर में सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है आपको, और कहा गया है कि सेल और जो टिश्यू हैं ये हमें ख़ास तरतीब से हर चीज़ में नज़र आते हैं, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या घास हो या हमारी शाम की चाय में खाए जाने वाले स्नैक्स हो। इन सब में हम सेल्स को एक खूबसूरत तरतीब से देख सकते हैं। सेल्स और इनकी जो तरतीब है सिर्फ पौधों तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि हमें अपने स्किन में, एनिमल्स के पर में, यहाँ तक कि हर जानदार में हम इसको देख सकते हैं। यानी हमारे अतराफ में जितने भी जानदार मौजूद हैं सब के सब सेल से मिलके ही बने हैं। लेकिन हमें उसके मुशाहिदे के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये चीज़ें हमें नेक्ट आइज से नज़र नहीं आती। माइक्रोस्कोप्स एंड एमरजेंस ऑफ द सेल थ्योरी, ये हमारा नया टॉपिक है। Zacharias Janssen is generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in the 1590s. It was simply a tube with lenses at each end, and its magnification ranged from 3x to 9x. Robert Wood had improved his version of the compound microscope to observe organisms. Microscopes are the instrument designed to produce magnified visual or photographic images of the objects too small to be seen with the naked eyes. There are two parameters especially important in microscopy: magnification and resolution. Magnification, the enlargement of the image, is called magnification. By the combining a number of lenses in the correct manner, microscope can be produced that will yield very high magnification values. Resolution, the resolution of microscope is defined as the smallest distance between 2 points on the specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps to measure clarity of the object. Both magnification and resolution are very important if you want a clear picture of something less than 0.1. For example, if the microscope has high magnification but low resolution, all you will get is a bigger version of the blurry image. Microscope and emergence cell theory, जो साइंटिस्ट हैं, इसमें नाम दिया हुआ है आपको जेंसेंस का, वो एक उन्होंने क्या किया कि 1590 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजाद किया, और उन्होंने इसको किस तरह इजाद किया? इसकी जो थी, इसमें एक ही उन्होंने ट्यूब बनाई थी जिसके दोनों सिरों पर लेंस लगे हुए थे, और उसकी मैग्नीफिकेशन की जो हद थी वो 3x से 9x तक थी। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने इनकी जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर उसको और बेहतरी करी, उसको और अच्छा बनाया। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है
जिसे उन बॉडीज़ को देखने के लिए बनाया गया है जो कि हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। तो हम इसकी मदद से ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इनकी जो तस्वीर है वो बना भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें दो चीज़ें अहम होती हैं, एक मैग्नीफिकेशन और दूसरी रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब तकबीर यानी कि हम बड़ा करके देख सकते हैं, और रेजोल्यूशन का मतलब तज़किया। मैग्नीफिकेशन किसी भी इमेज को बड़ा करने को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बहुत से लेंस को एक साथ मिलाकर सही तरीके से तरतीब देकर मैग्नीफिकेशन का काम लिया जाता है। इस तरह जिस्म को बहुत हद तक हम बड़ा करके देख सकते हैं। दूसरा है रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत कम फासले को इस तरह देखा जाए कि उनका फ़र्क वाज़े तौर पर अलहदा नज़र आए। ये चीज़ों को वाज़े तौर पर नापने के लिए या देखने में मदद देता है रेजोल्यूशन। दोनों मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं हमें कोई भी तस्वीर को वाज़े देखने के लिए, और अगर वो उसकी जो रेंज है वो 0 पॉइंट से भी छोटी हो तो। अगर छोटी होती मिसाल के तौर पर अगर किसी की मैग्नीफिकेशन की सलाहियत तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें रेजोल्यूशन की सलाहियत कम है, तो हम एक चीज़ को बड़ा तो देखते हैं लेकिन हमें उसका अक्स कैसा नज़र आता है, धुंधला सा नज़र आता है। अब यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट टॉपिक, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। There are two microscopes are used in microscopy, that is light microscope (LM) and the electron microscope (EM). यहाँ पे दो किस्म के माइक्रोस्कोप्स आपको बताए गए हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप in a light microscope visible light passes through a specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through the microscope is called micrograph. The magnification of light microscope is formed by using a mixture of the lens of the power of the eyepiece and the objective lens. लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, यानी लाइट का मतलब रोशनी, आम रोशनी इसमें इस्तेमाल की जाती है और इससे हम स्पेसिमेन का मुशाहिदा करते हैं, आम रोशनी इस पर से गुजार कर। अगर हम किसी स्पेसमैन की तस्वीर लें तो हम इसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की मिक्सचर से इसकी मैग्नीफिकेशन हासिल होती है। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscope differ from light microscope that they produce an image of a specimen by using a beam of electron rather than a beam of light. Electrons have a much shorter wavelength than visible light, and this allows electron microscope to produce higher resolution images than standard light microscopes. Electron microscope can be used to examine not just whole cells but also the subcellular structures and compartments within them. A live cell cannot be imaged by electron microscope. Electron microscope ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इससे डिफरेंट होता है। इसमें हम जो भी स्पेसिमेन हमें दिया जाता है आम रोशनी के बजाय हम उसको इलेक्ट्रॉन की जो रेज होती हैं उसको इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ये छोटी होती है, इसलिए ये उस बॉडी के अंदर आराम से सलाहियत कर जाती है और इस तरह हमें उसकी तफसील मिल जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन की सलाहियत होती है वो आम जो माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ एक सेल देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि हम इसके ज़रिए बहुत सारे अंदरूनी चीज़ें भी देख सकते हैं, अंदरूनी साख भी देख सकते हैं, अंदरूनी जो कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं सेल्स के उसका भी मुताला कर सकते हैं। लेकिन हम जो माइक्रोस्कोप है इसमें किसी भी लाइव सेल का मुताला नहीं कर सकते। Electron microscope has a resolution as small as 0.2 nanometer and the magnification up to 50,000 times. There are two major types of electron microscope: scanning electron microscopy, transmission electron microscopy.
In scanning electron microscopy, a beam of electrons moves back and forth across the surface of the cell or tissue, creating a detailed image of the 3D surface. In transmission electron microscopy, in contrast, the sample is cut into extremely thin slices before imaging, and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface. TEM is often used to obtain detailed images of the internal structures of the cell. इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन की सलाहियत अगर 0.2 नैनोमीटर और मैग्नीफिकेशन इस हद तक हो सकती है। यहाँ पे फिगर दे दी आपको 250,000 तक हो सकती है। इसकी दो अहम किस्में हैं, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें जो सेल्स और टिश्यू की जो सीधा आगे पीछे हरकत करते हैं, हम उसकी 3D इमेज बनाते हैं इसके अंदर। और इसके बरक्स जो आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसमें हम पहले नमूने के छोटे छोटे स्लाइस बना लेते हैं, उसके बाद उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक जो रेज है उनको फैलाया जाता है और इस तरीके से हमें सेल की अंदर की साख का मुताला हम इस तरह करते हैं। दोनों का प्रोसेस अलग है, स्कैनिंग का भी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। Ancient Greeks were the first to make comprehensive attempts to organize the data of the natural world. Aristotle presented an organized observation to support the idea that all animals and plants are somehow related. Later, this idea gave rise to questions like, is there a fundamental unit of structure shared by all organisms? But before microscope was first used in the 17th century, no one knew that living organisms do share a fundamental unit, that is cell. History of development of cell theory. इसकी हिस्ट्री क्या है कि जानदारों के जो आदात और शुमार हैं, ये कदीम यूनानियों ने शुरू किए। अरस्तू ने मुशाहदे की बुनियाद पर यह नज़रिया पेश किया कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो किसी तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें एक ख़ास रिश्ता या नाता पाया जाता है। बाद में इस नज़रिए पे ये सवालात उठे क्या दोनों के दरमियान कोई बुनियादी यूनिट मौजूद है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप की इजाद हुई जो कि 17वीं सदी में हुई थी, उससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि जानदारों में एक कदर मुश्तरक है जो कि सेल है। यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एयर दिए हुए हैं और एयर के मुताबिक आपको हिस्ट्री पता चलेगी सेल की। पहला है आपका 1665। Cells was first observed by Robert Hooke, an English scientist, discovered by a honeycomb-like structure in a cork slice using a primitive compound microscope. He only saw cell wall as this was dead tissue. He coined the term cell for these individual compartments as he saw. 1965 में रॉबर्ट हुक, जो कि एक अंग्रेज साइंसदान था, उसने सेल का मुशाहिदा किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो साख्त है ये शहद के छत्ते की तरह है। और उसने ये बताया कि उसने एक ऐसी सेल वॉल देखी है जो कि मुर्दा खुलियों में कॉर्क के मुर्दा खुलियों में मौजूद थी और इन खाली खानों के लिए उसने सेल का नाम यूज़ किया। इसी तरह 1670 में फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, अ डिच बायोलॉजिस्ट फ्रॉम पॉन्ड वाटर विद अ माइक्रोस्कोप। इन्होंने जो साइंटिस्ट थे, जो कि डिच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप में देखा, उस पानी का मुशाहिदा किया, जो एक रुका तालाब का जो पानी होता है उसमें उसने खुलिये का मुशाहिदा किया। इसी तरह 1683 में मिनिएचर एनिमल्स जो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने मेड सेवरल more discoveries on a microscopic level, eventually publishing a letter to the Royal Society in which he included detailed drawings of what he saw. Among these
was the first protozoan bacteria discovered. और इन्हीं साइंटिस्ट ने यानी एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने बहुत सारी और डिस्कवरीज भी की और उन्होंने बहुत सारी तफसीली तस्वीर बनाई और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की दरियाफ्त भी जो थी इन्होंने ही की इसमें। 1833 center of the cell was seen by Robert Brown, an English botanist, discovered the nucleus in a plant cell. और 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कि सेंट्रल में मौजूद था। 1839 सेल थ्योरी दी है थ्योडर शवान ने, a German scientist reached the conclusion that not only plant but animal tissue as well as is composed of cell. और ये जो जर्मन बॉटनिस्ट थे इन्होंने क्या कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों ही जो हैं वो सेल से बने हुए थे। इन्होंने इस बात का नज़रिया पेश किया कि एनिमल और प्लांट दोनों में सेल्स और टिश्यू पाए जाते हैं। 1839 में दिस ended debate that animal and plants are fundamentally different in structure. He also pulled together and organized previous statement on cells into one theory which states cells are organized and all organisms consist of one or more cells. Number 2, the cell is the basic structure unit for all organisms. 1839 पर ये जो बहस थी कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो साख के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर इसने वो तमाम बयान जो कि एक सेल के मुतालिक थे उन्हें एक जगह तरतीब देकर उन्होंने ये बयान यानी कि 2 बयान दिए कि जो जितने भी सेल हैं वो जानदार होते हैं और हर जानदार के लिए एक या एक से ज़ायद सेल जो है वो हर जानदार से बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया कि सेल जो है वो हर जानदार का जो है फंडामेंटल यूनिट है। 1840 के अंदर Where does life come from? Albert Chet von Rolliniker discovered that sperms and eggs are also cells. 1840 में इन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद 1845 में कार्ल हेनरिच ब्रॉन reworked the cell theory, calling cells the basic unit of life. इसके बाद इन साइंटिस्ट ने दोबारा से सेल थ्योरी पे काम किया। 1855 में थर्ड पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी एडेड टू द रिडॉल्फ वर्च्यू, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट एडेड द सेल इज नॉट डेवनो स्ट्रक्चर। दिस ट्रांसलेट मीन्स दैट ऑल सेल डेवलप फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल्स। 1859 में जो रिडॉल्फ वर्च्यू थे इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया और उसका उन्होंने ये कहा कि नए खुलिये पहले से मौजूद खुलियों की तकसीम से वजूद में आए। इन्होंने ये थर्ड पॉइंट जो है इन्होंने बनाया। उसके बाद 1862 में लुईस पैस्चर was a French biologist, microbiologist and chemist providing the experimental proof of this idea. और फिर 1862 में लुईस पैस्चर जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इसी आइडिया को प्रूव किया। ठीक है, ऐसे हमें मुशाहिदे भी हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आगे के लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारे तमाम लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, DNCPSS एंड HSPSS पर, और हमारे आप ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने रिक्वायर्ड लेक्चर्स देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।